Hello dear students, welcome back to my channel. Today I bring you a video of concavity of functions. First we are going to understand what do we mean by concavity. Then side by side we are going to solve a problem as well as we are going to implement that problem in R. If you haven't subscribed my channel, please do subscribe. I have brought a series of calculus practicals. Hope you are going to like it and enjoy it. So let's get started. What do we mean by concavity? See, the sign of the functions can reveal whether the function is increasing or decreasing, but they do not reveal about the direction of curvature. Whenever a function is going to have upward curvature, it is going to hold something, and whenever it is going to have downward curvature, it is going to spill off. So here I have two classes of water. So the one is which is holding the water and the other one is spilling the water. So whenever the function ka curve holds something, that would be the upward curvature, and whenever spilling work is done, you can consider that as downward curvature. So between whatever intervals, if the function is having upward curvature, that would be called as concave up. And between the intervals where the function is going to have downward curvature like this, we are going to say that it is concave down. So let's look at the definition and a theorem which will be useful for us to understand and solve the sums. If function f is differentiable on an open interval, then f is said to be concave up on the open interval if f dash is increasing on the interval, and it would be said to be concave down if f dash is decreasing on the interval. If f dash is increasing on an interval, we say that the function is going to have concave up. Yes, and when the function f dash is decreasing, then we say that the function is concave down on that particular interval. Now a theorem. Let f be the twice differentiable on an open interval. So twice times differentiation you have to do, and after doing that, if f double dash of x is greater than 0 for every x in the open interval, then you say that the function is concave up on that interval. And if f double dash of x, that is twice differentiation, is less than 0, then you say that f is concave down on the interval. Okay, so if it is greater than 0, we say concave up, and if it is less than 0, we say that the function is concave down on that particular interval. The references and the problems which are taken are from the Calculus Anton Bivens Davis 10th edition book. So now we are going to see a problem as well as side by side we are going to do the implementation as well. So let's look on that. Our question is to find the concavity of the given function, okay, f of x. So if f of x is given as x cube minus 3x square plus 1, how am I going to solve this particular question? बराबर. So इसके लिए पहले हम f dash of x निकाल लेते हैं. तो f dash of x क्या मिलेगा आपको? 3x square minus 6x. ओके, सो ये f dash of x निकल गया. अब हमें वो थ्योरम अप्लाई करना है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ x भी निकालना है. तो वो आ जाएगा आपका 6x माइनस 6. राइट, अभी आपको x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो डबल डिफ्रेंसिएशन करके आ रहा है उसे हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं. सो अगर हम 6x माइनस 6 इक्वल 0 करते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट x इक्वल 1, right? We are going to get x equal 1. So now if I consider a number line like this, yeah, so here would be 1. So what values I need to take? The values I would be taking would be x less than 1 and x greater than 1. बराबर? So this is a possible interval which I can take for this particular question. तो इसके लिए अब intervals हमारे पास दो है, x लेस देन 1 और एक है x ग्रेटर देन 1. बराबर. अब लेस देन 1 के लिए चलो हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं -1, और ग्रेटर देन 1 के लिए हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं x का 2.
अभी हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स के लिए चेक करना है कि इसका आंसर क्या आता है. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल -1 इन एफ डबल डैश ऑफ x. तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा -12. वी आर गोइंग टू गेट, इफ वी सब्स्टिट्यूट x equal to in f double dash of x, so we get 6 into 2 minus 6, that would be equal to 12 minus 6. That is, the values are negative and positive. मतलब f double dash of x जो है means f double dash of x जो है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वो लेस देन 0 आया, और जब पॉजिटिव आया इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0. So whenever it is less than 0, what was the theorem which we had seen? That it would be what? Concave down. And whenever it is greater than 0, it would be what? Concave up. So in this particular way, you can solve a problem. First, सबसे पहले तो see, f dash of x फाइंड कर लो, फिर उससे आपको f डबल डैश ऑफ x फाइंड करना है. x के लिए रूट निकालो, फिर वो रूट को नंबर लाइन पे मैप करके यू जस्ट सी कि क्या पॉसिबल इंटरवल्स हो सकता है, और फिर वो इंटरवल्स के अंदर आप कोई भी रैंडम x का वैल्यू ले लो, पुट दैट x का वैल्यू इन डबल डैश ऑफ x, एंड देन सी वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग, वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉट. नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, मतलब कि कॉन्केव डाउन होगा. पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या होगा? कॉन्केव अप. अब चलो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. Let's look at the implementation of concavity of functions. ठीक है, so we had already seen an example. Let's implement that example. If you wish to take any other example, just solve it manually, implement that in R. Okay, so for that I have taken a new script by clicking on new file R script. Okay, and I have written the code over here. So first तो हमें f of x input करना पड़ेगा. So I take a function f1 and I write the expression because it is going to create a expression with whatever values I give in it, right? तो हमारा expression अगर आप यहाँ से read कर लो तो x cube minus 3x square plus 1 है, बराबर. जो हमने solve किया था वही है, right? And then I just select the two lines and click on run. ठीक है, तो expression print हो गया, means these two lines are successfully run. Now I want to do what? देखो concave up and down है, तो double time डिफ्रेंसिएशन हमें करना है, बराबर. सो फर्स्ट टाइम जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका क्या आंसर मिलेगा हमें? 3x स्क्वायर माइनस 6x, और इसी को आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6x माइनस 6, राइट. तो ये हमने मैनुअली सॉल्व करके देखा है, तो मतलब ट्वाइस डिफ्रेंसिएशन करना है हमें. तो फर्स्ट टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो आई राइट DIF variable and then I write D because it is going to give me the differentiation, right, of the expression f1, and that is with respect to x, and I just printed this particular thing. So see, it is coming 3x square minus 6x, बराबर. This is done. अगेन यही इसी को ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बराबर. जो डेरिवेटिव आया है उसी को डिफ्रेंशिएट करना है. तो अब मैं लिखती हूँ DDIF. Yes, I just you can write anything over here, but just to understand that it is double differentiation, I write DDIF, then I write D. So DIF में जो एक्सप्रेशन है उसी को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x. और चलो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि प्रिंट भी करना है हमें, ठीक है. सो यहाँ पे DDIF, ताकि हमें आंसर पता चल जाए ना, इसके लिए और कुछ नहीं. सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस टू लाइन एंड क्लिक ऑन रन. सी दिस, क्या आंसर मिला हमें? 6x माइनस 6, राइट. डबल डिफ्रेंसिएशन कर दिया. अब हमें रूट्स चाहिए ना, हम मैनुअली सॉल्व करते हैं तो ऐसे मिल जाता है हमें, बट हियर इफ यू वांट टू गेट द रूट्स, क्योंकि पॉलिनोमियल देखो कैसे भी हो सकता है, द पावर्स एनी पावर कुड बी द हाईएस्ट वन, लाइक इट वुड बी रेज टू 4 या रेज टू 5 तक हो सकता है, तो बेटर आप पॉली रूट यूज़ कर लीजिए, ठीक है. सो पॉली रूट यूज़ कर लिया फंक्शन, और उसके अंदर मैंने वैल्यू सब लिखे हैं c ब्रैकेट -6,6. ये कैसे लिखना है? पीछे साइड से लिखना है. जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना उसके बैक साइड से लिखना चालू करना है, राइट. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में आपको कोएफिशिएंट्स लिखना है. तो यहाँ पे लास्ट में कोएफिशिएंट -6 है, फिर उसके बाद 6, तो आप लिखोगे -6,6. ये ध्यान रखना, यस, इट इज ऑलवेज रिटर्न एज कॉन्स्टेंट, देन x का कोएफिशिएंट, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर x क्यूब का कोएफिशिएंट. इन दैट पर्टिकुलर वे
द वैल्यूज आर टू बी गिवन। तो उस हिसाब से मैंने मेरा 6x माइनस 6 एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू दे दिया है। -6 होगा पहले, फिर बाद में 6 होगा, राइट। तो मैंने लिख दिया पॉलीरूट के अंदर, तो ये कैलकुलेट करके मुझे वैल्यूज देगा। तो अब हमने इसे सेलेक्ट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द रन, राइट। सो यू सी हियर व्हाट द आंसर इज कमिंग 1 + 0i यानी कि 1, ठीक है, जो कि हमें भी आ रहा था ना 1। अब हमने नंबर लाइन में 1 देखा, तो वैल्यूज पॉसिबल क्या हो सकते हैं या क्या इंटरवल्स ले सकते हो। एक तो लेस देन 1 के वैल्यूज ले सकते हो और एक ग्रेटर देन 1 के वैल्यूज ले सकते हो, बराबर। तो एक मैंने लेस देन 1 वाला वैल्यू लिया है जो कि -3 है, और दूसरा मैंने ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू लिया दैट इज 2। आई नाउ वांट टू इवैल्यूएट व्हाट 6x माइनस 6 को इवैल्यूएट करना है। डबो मैंने इवैल में लिख दिया क्योंकि इवैल्यूएट करना है हमें वो एक्सप्रेशन। तो x की जगह पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट होके इवैल्यूएट होगा। तो पहले हम इन दोनों लाइंस को रन करते हैं। सो देखो आंसर जब x का वैल्यू -3 होगा तो आंसर -24 आएगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव है, यस। और जब ये वैल्यू 2 होगा तो जो आंसर आएगा वो क्या है 6। अच्छा, हमने यहाँ पे -2 लिया है, तो हम एक काम करते हैं, बेटर वी आर गोइंग टू टेक केयर -2, ठीक है। तो हम इन चारों लाइंस को रन करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है -18 और यहाँ पे 6, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू एंड अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें पता है कि जब भी f डबल डैश दैट इज डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो कॉन्केव डाउन होगा, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा तो कॉन्केव अप होगा, राइट। अब हमें कर्व चाहिए, तो कर्व के लिए हमने फंक्शन को एक्सप्रेस कर दिया है। आवर फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्लॉटिंग द कर्व और फॉर गेटिंग अ कर्व आई राइट कर्व। देखो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तभी उसका पूरा सिंटैक्स आ जाता है। फंक्शन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, फिर फ्रॉम टू एक्स लिम वाई लिम यू कैन राइट। सो मैंने लिखा कर्व मुझे फंक्शन का चाहिए fun। एक्स लिमिट दे दिया है -1 से 3 तक और वाई लिमिट दे दिया है -3 से 2 तक, ठीक है। और अब जब हम इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, लेट्स सी द प्लॉट नाउ, सी दिस क्या हो रहा है। जब भी वैल्यू लेस देन 1 था तो कॉन्केव डाउन था, सीधा तो कॉन्केव इज डाउन, योर कॉन्केव डाउन, एंड व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 it is concave up, it is holding upside, yes, it is concave up, you can see. So this is how you can implement concavity of the functions. कोई भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका डबल डिफ्रेंसिएशन आएगा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोएफिशिएंट्स देना। कोई भी एक रैंडम वैल्यू x का सेलेक्ट कर लो जो भी इंटरवल के रेंज में है, और फिर इवैल्यूएट कर लो और फिर आपके कर्व को प्लॉट कर दो, ओके। So I hope you would have understood it and you are absolutely going to try this, not only with this particular sum, with other sum also, and stay tuned, keep watching.